नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर जीरकपुर से, जहां 2 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। बालाजी एन्क्लेव में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां एक बिल्डिंग गिर गई और बताया गया है कि इस इमारत के साथ खुदाई का काम चल रहा था। बड़ा हादसा हुआ है जीरकपुर में, जहां 2 मंजिला इमारत गिरी है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर दिखा रहे हैं कैसे ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। बालाजी एन्क्लेव में ये हादसा हुआ है। बताया गया कि बिल्डिंग के साथ में खुदाई का काम चल रहा था, जो एक बड़ी वजह इस हादसे की। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर दिखा रहे हैं कैसे ये बिल्डिंग गिरी है। जानकारी ये मिली है कि इसके साथ में ही जो प्लॉट था वहां खुदाई का काम चल रहा था। इसकी वजह से इस इमारत की नींव कमजोर हुई और ये इमारत कैसे ढह गई, ये हमारे कैमरे में कैद हो गया। जीरकपुर में 2 मंजिला इमारत है जो इस तरीके से गिरी है। हादसे में गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। बालाजी एन्क्लेव का यह हादसा, जहां बिल्डिंग के साथ खुदाई चल रही थी और कैसे इस खुदाई की वजह से एक बिल्डिंग जो 2 मंजिला थी वो गिर गई। न्यूज़ 18 के कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई हैं जिनको हम दिखा रहे हैं आपको। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे 2 मंजिला इमारत गिरी। ये तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं कैसे न्यूज़ 18 के रिपोर्टर मनोज राठी जब वहां से जानकारी दे रहे थे, तभी हमारे कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। बिल्डिंग गिर गई, 2 मंजिला ये इमारत थी जो गिरी है बालाजी एन्क्लेव जीरकपुर में, जहां ये हादसा हुआ। गनीमत ये कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, हालांकि आर्थिक नुकसान हुआ। बिल्डिंग के साथ ही खुदाई का काम चल रहा था, जो एक बड़ी वजह इस 2 मंजिला इमारत के गिरने की। जीरकपुर में कैसे 2 मंजिला इमारत गिरी है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप देख सकते हैं कैसे 2 मंजिला इमारत आंखों के सामने ढह गई। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗਿਰੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਢਹਿ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੈਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਢਹਿ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ 30-35 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੜ 'ਚ ਵੀ, ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ SHO ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਾਜਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੁਝ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪੱਟਦੇ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਏਰੀਆ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਟਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। तो जीरकपुर में यह हादसा हुआ है और वहीं से मेरे सहयोगी जानकारी देते किस तरीके से यहां पर यह हादसा हुआ। और मनोज राठी हमारे साथ जुड़े फोन लाइन से और जानकारी अपडेट के साथ। मनोज, क्या अपडेट इस हादसे पर, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई है न्यूज 18 के कैमरे के जरिए देख सकते हैं कि कितना भयावह यह हादसा हो सकता था। वो वक्त रहते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आसपास के जो इमारतें थी उनको खाली करवा लिया था, लेकिन एक बड़ा हादसा यहां जरूर हो सकता था। मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से ये 2 मंजिला इमारत गिरी है। 7 के प्लॉट में खुदाई का काम चल रहा था, बेसमेंट बनाने के लिए खुदाई हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरतेगी, जिसके चलते 7 लगती 2 मंजिला ये इमारत ढह गई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो उस वक्त हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्टिंग करते हुए बता रहे थे कि किस तरीके से यहां पर खुदाई हो रही है और कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती, तभी ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। मेरे सहयोगी मनोज राठी फोन लाइन से जुड़े हैं। मनोज, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था अगर वक्त रहते यहां आसपास की इमारतों को खाली नहीं करवाया जाता। फिलहाल पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या अपडेट है? ये देखने वाली है कि मोहाली जिले में ये पहला मामला नहीं है जिसमें बिल्डिंग गिरी। इससे पहले भी मोहाली जिले में पीर मुशल्ला एरिया में इलीगल बेसमेंट की खुदाई थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिरी। थोड़े दिन पहले ही खरड़ एरिया में वहां पे भी इलीगल बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, वहां पर भी बिल्डिंग गिरी। अब इसके बाद आज भी इलीगल बेसमेंट की खुदाई के चलते ही ये जो 7 वाली बिल्डिंग है, जहां पर केमिस्ट की शॉप है, ऊपर रेंट पे लोग रहते हैं, 2 मंजिला ये इमारत थी। अचानक बेसमेंट पे खुदाई के टाइम जो है इस पे दरारें पड़ी और धीरे धीरे सारे वहां से फरार हो गए। जो ठेकेदार था, जो वहां का मालिक है, जो बेसमेंट खुदवा रहा था, वो भी वहां से फरार हुआ। लेकिन जब केमिस्ट वाले को तब पता चला कि जब धीरे धीरे उसके शीशे टूटने लगे, धीरे धीरे बिल्डिंग खिसकने लगी, उसके बाद वो वहां से निकला और उसके बाद उसने पुलिस को कॉल की। न्यूज 18 टीम देखा कि हमारे कैमरे में सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई जहां पर ये बिल्डिंग अचानक गिरी। हालांकि 7 वाले एरिया में गोडाउन एरिया था, जहां पर टीवी, फ्रिज, एलईडी, एलसीडी, वहां पर भी सारी जो दीवारें हैं गिरी, वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया। यानी कि सारे सामान के साथ करीब लाखों का नुकसान अगर हम बात करें हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जब इलीगल बेसमेंट, आखिर ईओ विंग क्या कर रहा है? हमारी ईओ विंग के जो इंस्पेक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन करे कौन? वो कहते हैं कि हम करते हैं, लेकिन लोगों को चाहिए कि इस तरह की चीजें ना करें, अपने आप से पल्ला झाड़ने की कोशिश। हर बार ऐसा होने के बाद ही अधिकारी जागते हैं और हम इससे पहले भी 2 बड़े हादसे ऐसे ही मोहाली जिले में ही देख चुके हैं, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे। यहां पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है और लोगों की सतर्कता भी ऐसे हादसों से बचाव में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। आंदोलन खत्म होएगा। अब बड़ी खबर अन्नदाता के आंदोलन से जुड़ी हुई। केजेपी और केएमपी एक्सप्रेसवे पर भारी जाम लग गया है। एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम है। ग्वालियर और बुंदेलखंड के किसानों ने जाम किया है। कृषि कानूनों के विरोध में अब यहां के किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। NH-19 पर हजारों ट्रक हैं जो इस जाम की वजह से फंसे हुए हैं। पलवल शहर में भी जाम का डर अब सताने लगा है। अन्नदाता आंदोलन कर रहा है और लंबे संघर्ष का ऐलान करते हुए दिल्ली के बॉर्डर पर डटा हुआ है। पंजाब हरियाणा से हजारों की तादाद में किसान टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ अब एक और तस्वीर, एक और असर की तस्वीर आपको दिखा रही है। केजेपी और केएमपी एक्सप्रेसवे पर कैसे बड़ी तादाद में किसान जुटे तो कई किलोमीटर तक का जाम लग गया। यहां पर ग्वालियर
ग्वालियर और बुंदेलखंड के किसान हैं जो मोर्चे पर डट गए हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। NH 19 पर हजारों ट्रक हैं जो जाम की वजह से जहां थे वहीं फंसकर रह गए हैं। पलवल शहर में भी अब जाम का डर सताने लगा है। 20 घंटे हो गए खड़े खड़े। 24 घंटे हो गए। क्या जाम लग रहा है यहाँ? हाँ, जाम लग रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है, इसके लिए नहीं निकलन दे रहे हैं। कब से जाम लग रहा है? 4-5 दिन हो गए बराबर जाम लगते लगते, बस 1 घंटे का जो खुल रहा है और कल से तो अल्लाह का बिल्कुल ही जाम नहीं खुला है। यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं निकलने की और तमाम ड्राइवरों को परेशानियां हो रही हैं। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾ ਮੰਨੇ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਹਟ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ लोग किसान आए लंगर तो चाहिए, तो लंगर चल रहा है सभी के लिए, किसान भाइयों को नहीं। जो ट्रक ड्राइवर उनको रात को जाके चाय पिलाई, पुलिस वालों को जाके पूछा, पुलिस वाले भी आ रहे। किसान आंदोलन अब पूरे देश में मजबूत होता जा रहा। मैं दिखाना चाहूँगा नेशनल हाईवे 19 को जो दिल्ली से आगरा की तरफ जाता है, किसानों ने पूरी तरह से जाम कर रखा है। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के हजारों की संख्या में किसान यहाँ डटे हुए हैं। आगे दिल्ली जाना चाहते थे लेकिन जिला प्रशासन मंजूरी दे रहा है, आगे फिर ये नहीं जाना चाहते। इनका कहना है कि यहीं जाम रखेंगे। नेशनल हाईवे 19 के जाम होने की वजह से KGP और KMP एक्सप्रेस पूरी तरह से जाम है। ये KMP की सीमा है और इसके तरफ जिस पलवल शहर है से आने वाले या उतरने वाले वाहन यहाँ से एग्जिट पॉइंट और आउटर पॉइंट सारे बंद पड़े हैं। कि आप देख सकते हैं KGP एक्सप्रेस की तरफ सारे वाहन जा नहीं सकते, कुछ वाहन KGP की तरफ से आ रहे हैं। इसकी वजह से जो सब्जियों के वाहन हैं, कुछ ट्रकों में दूध है, कुछ ट्रकों में कच्चा माल है, काफ़ी परेशान यहाँ पर ट्रक चालक हो रहे हैं। उनका कहना है कि जाम को जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए, लेकिन किसान डटे हुए। उनका कहना है कि जब तक ये सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, MSP पर लिखित में कानून नहीं बनाया जाता और 3 अध्यादेश वापस नहीं लिए जाते, तब तक किसान यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। पलवल से देश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। एक और बड़ी खबर, भारत बंद को खापों का भी समर्थन मिल गया है। जगह जगह सड़कों को जाम करने की खापों ने चेतावनी दी है। ट्रैक्टर और बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम करने की चेतावनी दी गई है। सरपंच और पंच भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई गई है जिसके तहत सड़कों को जाम किया जाएगा, ट्रैक्टर और बैरिकेडिंग की जाएगी जिससे सड़कें जाम हो जाएं। तो भारत बंद कल बुलाया है किसान संगठनों ने। अब इस भारत बंद को खापों का भी समर्थन, जगह जगह सड़कों को जाम करने की चेतावनी दी है। साफ शब्दों में कहा, ट्रैक्टर बैरिकेडिंग की जाएगी जिससे सड़क जाम हो। सरपंच और पंच भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं और भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई गई है। भागने वाले सारे रास्ते जाम कराए, सब तो हिंदुस्तान जाम होगा, कोई रास्ता खुला नहीं बचा दिल्ली जाने के लिए। हर एक रास्ता बंद होगा। सारा हिंदुस्तान मजदूर 36 बिरादरी का ये बंधन है, एक जात का नहीं है। सब किसान मजदूर एक हैं। हम कल सारा शोक और हिंदुस्तान को बंद करेंगे। कल 8 तारीख को पूरे भारत बंद का जो ऐलान किया गया है किसान यूनियनों द्वारा, सभी खाप पंचायतों द्वारा जो ऐलान किया गया, उसमें दिल्ली का हम कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हर एक रास्ते को हम बंद कर देंगे। एक चाय की दुकान भी हम खुली नहीं रहने देंगे और दिल्ली जाने वाले हर एक रास्ते को बंद करेंगे। उसमें हमें एक कमेटी बना दी गई हर गाँव के साथ। इस सबके बीच में सवाल यह है कि आखिर किसानों का ये आंदोलन कब तक चलेगा। केंद्र सरकार से 5 दौर की वार्ता नाकाम होने के बाद किसानों ने कल भारत बंद बुलाया है, तो वहीं विशेष सत्र की मांग को लेकर पंजाब के कांग्रेसी सांसदों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर के पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे, किसानों के बीच पहुंचे और वहां की व्यवस्था का भी जायजा लिया। 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के साथ किसानों की छठे दौर की बातचीत है, तो दूसरी तरफ खिलाड़ियों ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। अवॉर्ड वापसी का सिलसिला चल पड़ा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बंद का किन किन सियासी दलों ने समर्थन किया है। कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, इनेलो, शिवसेना, एनसीपी ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। साथ ही टीएमसी, आरजेडी, टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने कल भारत बंद बुलाया है और इस बंद का पूरे विपक्ष ने एक साथ एकजुट होकर समर्थन किया है।
और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आंदोलन खत्म होएगा